500 है. All right, beta. So this session is basically an orientation class. It's mostly primarily for the October-November 2026 batch. However, अगर आप उसको मई जून के लिए बैच के लिए भी लेना चाह रहे हो तो you can take it. We will be having separate orientation classes for the May June batch. लेकिन because हम इस class में general बातें discuss करेंगे, most of the questions that you have overall, for example कि यार what is English language, what do you study in English language, a little bit about me, a little bit about our system, a little bit about how we have been doing things for the past couple of years. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके तो कुछ जेनेरिक हैं, whether you are appearing for the October November batch or the May June batch, वो तो सेम बात है, राइट? तो आप दोनों ये क्लास ले सकते हैं. However, for the October November batch, please note कि the registrations have almost ended because आज से हमारी batch start और it's commencing now. So we are at the final stage of our registrations. Let's start a bit by talking about English in general. सही है ना? पहले हम लोग इससे start लेंगे, सही है ना? Remember, all of your questions will be answered. देखो वैसे ही मेरी घर में कोई मेरी नहीं सुनता, सही है ना? तो ये मुझे पहली बार मौका मिला है थोड़ा ज्ञान देने का. आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट पहले मेरा ज्ञान सुन लें. And then after all the, as soon as like a slide gets over, I'll give you some time to ask questions. And end we will have a Q&A session, right? And if not that, our DMs are always open. If you want to ask anything, तो आप वहाँ से ही पूछ सकते हैं हमसे. So I'll tell you about everything else. ठीक है? सही है, चलो बेटा. English language. I teach English language. My name is Ms. J. Javedia. English, as you guys know, is not just a subject. So, I know you guys have a lot of other subjects. आप लोग probably O3 में होगे right now. And that means you have 4 other subjects at least beside English language. और मुझे पता है कि आप लोग इतनी इज्जत नहीं देते हो इंग्लिश को. So we'll talk about that कि क्यों important है, क्यों आप आखिर के 2 दिन पढ़ने के अलावा भी और कुछ कर सकते हैं इसमें. But most importantly, what is English language and how do you study it? Yeah, honestly, English is more than a subject. क्योंकि as you guys obviously know, it's a language, right? पर मैं क्यों ये बात बोलती हूँ? And even if you search it up on the internet, why do people say कि it is not just one, but the most important GCE or IGCSE exam that you'll ever appear in? Because I'm going to be honest with you. English is, more than that's something that goes beyond the classroom. It's a skill. काफी sad reality है, लेकिन आपको पता ही है कि यार people judge you by this. Like even if you're applying to a college, for example, go ask your seniors. जब वो college applications भर रहे होते हैं, they go and apply to a college. उसमें भी मेरा बेटा, they are required to speak in English. And ये सब बातें हैं that really contribute to this subject as something that's more than a subject because it's a skill. Some reasons why I think that you should give enough importance to English and not just cram it like a month before the exam is because जैसे आपने for example chemistry लिया O levels में, सही है ना? Great subject आपने लिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर वो आपने A levels में नहीं लेना तो तुम्हें जिंदगी में कभी से कोई काम आगे नहीं आना. आपने रट लिए थोड़ी सी चीजें, you just रट्टा मार लिया आपने अच्छा से चैप्टर्स का, पेपर दे दिया, बहुत अच्छा स्टार लिया आप. But unless you're taking it in A levels, आपको उसका जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा. However, the saying does not apply to English क्योंकि it's a skill. And the way we teach it is कि मैं सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगी. मैं ये नहीं चाहूंगी कि यार आपके पेपर ये सॉल्व कर लो, ये याद करके पेपर निकाल दो. That's not how I want it to be. I really want you to learn something. ऐसी कोई चीज जो आपको डेली बेस में नहीं आती. Something that you will use on a daily basis, but you don't know it now. I'm going to be honest, if you're even listening to someone speak, जैसे word था cram. क्या मतलब होता है cram का? It means रट्टा लगाना. For example, अगर मैं आपको pause करके पूछूं यार, right now, what is this class called? What are we doing? Orientation class. अगर मैं आपसे पूछूं यार, like in 1 minute, without googling it, what do you guys think orientation class का क्या, orientation word का क्या मतलब है? Do you think it means new? क्या मतलब होता है orientation का? What's one word that comes to your mind? I've opened the chat for a second if you guys can. So like क्या demo में आपको लगता है मतलब intro मतलब है? No, that's not what it means.
सही है, मतलब हमें ये लगता है बिकॉज हमने इस कॉन्टेक्स्ट में सुना हुआ है। इंट्रो दे रहे हैं भाई, मतलब होली हेल, इट्स नॉट एन इंट्रो। सही है, क्या मतलब होता है, इट्स अ बिट डिफरेंट, इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट। ओरिएंटेशन या ओरिएंट करना, पता व्हाट इज दैट मीन? टू ओरिएंट योरसेल्फ मीन्स टू एडजस्ट टू समथिंग न्यू। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन ओरिएंटेशन क्लास। मतलब एडजस्ट मतलब होता है ओरिएंट करने का। दैट्स इट। मतलब इंट्रो मतलब नहीं है। आई नो सिमिलर लग रहा है, लेकिन अगर आप सेंटेंस में यूज करोगे तो आप बोलो कि यार, एज सून एज आई लैंडेड इन टर्की आई हैड टू ओरिएंट माई सेल्फ टू द न्यू सराउंडिंग्स। दैट्स हाउ यू वुड यूज इट। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि you can see yourself if you learn it in the right way, नॉट जस्ट रट्टा लगा के। इंग्लिश तो रट्टे वाला सब्जेक्ट है ही नहीं यार, इतना कोई प्यारा सब्जेक्ट है, इट्स जेन्युइनली सो फन। there's nothing to memorize. You can genuinely increase your English proficiency level. अब ये क्या होता है English proficiency level? When you get older, or if you have any older siblings around you, they'll tell you about this, कि English proficiency level होता है जब आप SAT दे रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा, आप व्हाट डू यू से आइल्स दे रहे हो, तो दे आस्क यू टू गिव एन एग्जाम। आपको एग्जाम देना होता है टू चेक एंड शो योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है। वी टीच यू इंग्लिश इन सच अ वे कि आप सिर्फ ओ लेवल्स नहीं निकाल रहे हो, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़े। बहुत सारे लेवल होते हैं, सी से लेके बी से लेके ऐसे आप बढ़ते जाते हो। सी इज द हाईएस्ट वन, C2 इज द हाईएस्ट वन। ठीक है, एनीवेज, so that's just basically it. That's why I think कि English को आपको इस way में पढ़ना चाहिए as a skill, not just a subject. And one thing that's very important to note here that you guys might not know about is the fact that English is the one O-level subject जिसमें statistically सबसे कम A stars आते हैं every year. I know that you guys think यार मैं आखिरी महीने पढ़ लूंगा, and I know that people end up getting like B's and वो निकाल देते हैं इंग्लिश। पर यार निकालना थोड़ी हमारा एम है, like don't we want something better? I genuinely have students and all of my students 80% of them always get A's and A stars, क्योंकि कसम से आप गूगल पे सर्च कर लो, इट विल शो यू कंबाइंड साइंसेस। कंबाइंड साइंस को देता नहीं है, पर जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं ना ओ लेवल्स के, GCSEs के, सबसे कम ए स्टार्स हर साल, ओनली लाइक आई थिंक 2.8% बच्चों के स्टार आते हैं सिर्फ इंग्लिश में। मैथ में 15-20% के आते हैं कसम से। सो इट्स जस्ट दैट when you're giving an exam, when you're giving your exam मेरा बेटा, आप खुद सोचो इस बारे में। जबकि ट्रांसक्रिप्ट आएगी, you have 8 subjects in your transcript, आपने मैथ को 6-7 महीने दे दिए, आपने उसके 5 साल की ईयरलीज कर लिए, उस मैथ का ए, एंड अल्लाह ना करे इंग्लिश में कोई कम ग्रेड, will have the same weightage. It's not everyone will just ask you ओ लेवल से क्या ग्रेड थे, and you'll be like जो भी ग्रेड है अगर उसमें एक बी है, and even if it's English that's bad. तो खैर, that's basically it. And then last thing is के English helps you all the way up till your university admission tests. For example, कुछ universities होती हैं like University of Leicester. I'm talking about the European side. If you want to go abroad, तो a lot of universities will take, अगर आपका B above grade आ गया ना English में O levels की, like an A or an A star, they'll exempt your English proficiency test. तो आपको probably SAT IELTS देना भी नहीं पड़ेगा. There's a lot of universities like that. University of Greenwich, and then that's really helpful. You can search it up as well. So that's a little bit about English. ठीक है, now we're going to move on to the other section. Before that, yeah, आपको काफी ज्यादा Pokemon theme देखने को मिलेगी in my notes and everything. I love to, yeah, I'm going to open the chat as I said, हर slide के बाद 5 मिनट के लिए chat खोलेंगे, but main questions I'll answer later on. सही है? What I was going to say is कि आपको बहुत सारी themes मिलेंगी in my notes because I really like doing this. I love like आपको मेरे notes में Harry Potter theme and what do you say? You'll see a lot like Harry Potter and Pokemon are like up there, but और भी होंगी. This demo is mostly for October, November, but you can also take it from May, June if you want. No, wait, I'm Alhamdulillah Muslim. सही है? I was born in 1990. ठीक है? Okay. It's a general subject for English first language, second language, and O levels. सही है? चलो बेटा. I'm very old. I'm like 30. Shout out to Samir Ali, bro.
अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बस. Now we're gonna go on to the other section, which is a very narcissistic section. मुझे अपने बारे में बात करना बिल्कुल भी कसम से पसंद नहीं है. I swear to God, ये मेरी least favorite चीज है. पर I think this job demands it. So now we're gonna move on to the Miss J page because a lot of you don't know me. So I know I need you guys to know this a little bit. ठीक है. I was born in 1900s यार. आप लोग मेरी एज से आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा. चलो यार, ओके. लेट्स जस्ट टर्न ऑफ द चैट अगेन. आप लोग आज मुझे बहुत अच्छे मूड में पा रहे हो. मैं इतने अच्छे मूड में आपको नहीं देखूंगी क्लासेस में. ठीक है बेटा, चलो आई एम बैक. Let's talk a little bit about me and why I'm teaching you guys and everything a little bit. Yeah, basically मेरा बेटा that's something that you hear a billion times in every single class. पर खैर, okay मेरा बेटा, I don't do it जानबूझ के, मेरी कंट्रोल में नहीं है. But let's see. So I have done O and A levels myself. I did it back in the day. I got 9 A stars and 1 A in O levels. I had 4 A stars and 2 A's in A levels. Basically, what happened was the 1 A in O levels was an ad math, and that's because I did not really have a teacher in my school. A levels में ये था कि I took 5 subjects जब मैं कॉलेज में थी, right? But उस वक्त I did not take English language in my A levels. मैंने 5 सब्जेक्ट दिए. I wanted to go abroad. That did not work out for some personal reasons. मेरे खानदान वालों को आखिरी मिनट पे याद आ गया था कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ and they can't let me go. So that's what happened. But then I took in, like, as soon as my A levels ended, I was in university at that time. मैंने यूनिवर्सिटी में होते हुए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया, English language, and then I got an A star in it as well. ठीक है. And why did I do that? मैंने क्यों दिया extra subject? Because that's when I realized that I wanted to teach English. So, I have a double bachelor's. I'll tell you a little bit about it later. So I've done O levels, A levels. I've done a lot of certifications related to teaching. For example, there's this, आपको पता होगा, Cambridge training होती है for teachers. I've done 5 of them. O levels की, GCSE A levels की, online, physical, all of those. I've done TEFL. I'm doing CELTA. CELTA is basically the highest certificate that you have as an English language teacher. You can also search up about it. It's basically certificate for English to second language learners. जो कि आप लोग हो. English is not your first language for most of you, right? आप लोगों का second language English. So that's the certificate for teaching it to you guys. I teach O levels, IGCSE and A levels. This is the general orientation class. ठीक है ना? For all these 3 syllabus codes. However, सारे batches आपके separate होते हैं. Obviously, they're not in the same batch, but the orientation class same है because हम general बातें कर रहे हैं. I've been teaching for a lot of time, like since a very long time. As soon as my O3 ended, I started teaching. So yeah, so I have had a very long journey. However, I did not post a lot about it on social media. I just started like last year, and within a year, alhamdulillah, 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 I'm extremely grateful. But I just started posting about like last year, and usme we got a lot of success. We reached around 7,000 kids on Instagram. We have like 5,000 kids on YouTube. We have a lot of free lectures on YouTube, and we will also be uploading more of them, inshallah. So it's not like you can also learn on YouTube for free. There are a lot of free resources on our website as well. I'll tell you about it. So I'll tell you everything, right? It's not just for enrolling in the course, but there are sections. And last year we had the entire syllabus content up on YouTube, and inshallah by in a couple of months, as the October November session nears, हम लोग all videos भी upload करेंगे, ठीक है ना? That's a promise. And there's a lot of free things on our website as well. Last year we had around 4,000 kids on our WhatsApp channels, जो कि अभी तक मुझसे connected है. I swear to God, I love teaching. That's what I want to say. It's my passion. When I was in my own O levels and even A levels, मुझे English में बहुत ज़्यादा ख्वारी फेस हुई थी. I was stressed. I did not have enough resources. Like, if you go on YouTube, you can find so many teachers for maths and chemistry and so many subjects. But for English, there was just nothing. And that's the gap I want to bridge. I don't want that gap to be there. So we will have stuff on YouTube as well and everywhere, right? That's what we want to do.
Even our WhatsApp channel, I'll tell you about it a little bit. So there are like 3 ways in which you can contact us and see us. So one is our website, our YouTube, our Instagram, and then we have our WhatsApp community that I'll share the link to. It's also on our Instagram, by the way. आप जा सकते हो. अभी मैंने गलती से अपने Instagram का handle change कर दिया है और बकवास तरीन ये रख दिया है. तो you will find it here. I'll change it back in a couple of days though. But I'm just telling you that because your WhatsApp community है, that's also free. Right? And what help is that कि यार वहाँ पे हम लोग बहुत सारी tidbits upload कर रहे होते हैं. We're really uploading general छोटे छोटे notes that you guys can see, daily worksheets, because I know कि आप लोग इतना time नहीं निकाल पा रहे हो. I know कि you guys would not be able to take up that much time out. तो इसलिए the WhatsApp community is really helpful as well. ठीक है? That's generally it. Okay. Okay, so now a little bit, that's mostly about myself. I am not a nerd. अगर आप लोग ये पूछना चाह रहे हैं तो I am not a nerd. ठीक है, I had really good grades in O levels, but obviously I talk about that in classes as well. अभी मैं इतना इस पे focus नहीं कर सकती हूँ. We'll talk about that inshallah when we start our sessions. But you can get the right balance. You can get good grades just by staying in the class. मैं honestly कोई बहुत अच्छी student नहीं थी. I was a bad student. I didn't really have the best grades in like midterms वगैरह, but finals में आके did clutch. I just had the right path, and that's all you need. The right path and the right guidance. And honestly, the only thing you need is यार insane self-confidence. That's what I do. Insane self-confidence. Every time I walk into a room, and I think you should do this as well. कि यार I'm the best here. मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं. That's what Allah Pak wants you to believe. You are literally Ashraful Makhlukat. No one's better than you. As long as you have that mentality and you're also close to religion, nothing can stop you. Literally, you can achieve everything as long as you want it. Okay. तो ये थोड़ी मेरे बारे में हो गया है. And I have a lot of hobbies. Everything. I play a lot of sports. I watch a lot of sports. We'll talk about that later on. Yeah, आप लोग के generally सवाल थे chat में, so I'm answering those a little bit, but we'll see that later on. So now let's talk a little bit about English. मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सही है? And this I think to me is a very normal question. I will be opening the chat after this, तो आप सब आंसर कीजिएगा. I'm hoping कि कोई भी previous batch का बच्चा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ. So if you are here, तो your answer will not be accepted. I'm sure कि in all of your years of learning English, अगर आपने कभी English नहीं भी पढ़ी, तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये दो नाम जरूर सुने होंगे. सबने सुने होते हैं, नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे. ठीक है ना? आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग. मैं आपसे बस एक वन वर्ड का सवाल पूछ रही हूँ यार. दैट्स अ वन वर्ड आंसर. आई एम श्योर यू गाइस हैव हर्ड ऑफ इट. इतना तो सबने सुना होता है यार. अब मुझे बताओ एक वर्ड के अंदर कि ये नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में फर्क क्या होता है. Just tell me that. और ये कोई नहीं बोलेगा नैरेटिव मीन्स टू नैरेट समथिंग, डिस्क्रिप्टिव मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग. इतनी अकलमंद तो मैं भी नहीं हूँ. बट ओके, जस्ट वन वर्ड आंसर्स. एनी व्हाटएवर यू थिंक, वन वर्ड प्लीज. वन वर्ड का मतलब होता है एक. ठीक है, सो जस्ट वन वर्ड आंसर्स इन द चैट. क्या क्या एक फर्क है डू यू थिंक बिटवीन नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एसेज? फर्क होता है यार, नथिंग. कैसा सवाल है, अल्लाह अकबर. क्या फर्क है, क्या फर्क है? लेंथ, डिफरेंट, एडजेक्टिव्स. लंबी करना इज व्हाट आई से, फॉर्मेट, टेंस स्ट्रक्चर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कुछ भी नहीं है. फाइव सेंसेस, लेंथ, पर्सपेक्टिव, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. I am related to Sir Mahad Amir. He's my brother. He's a physics teacher. ठीक है यार. चलो सही है. अभी तक मुझे किसी का भी सही आंसर नहीं मिला है. लैंग्वेज इज रॉन्ग, सेंसरी डिटेल्स आर रॉन्ग, vocabulary is wrong. This is all wrong मेरा बेटा. चलो मैं बताती हूँ. पहली बात तो कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस क्लियर कर लेते हैं जो आप लोगों ने आंसर किए चैट में. आई टेल यू द मोस्ट कॉमन आंसर इन द चैट. द मोस्ट कॉमन आंसर इन द चैट इज ही इज माय ब्रदर. यस मेरा बेटा. द मोस्ट कॉमन आंसर इन द चैट इज डिटेल. द सेकंड आंसर इज सेंसेस. द थर्ड आंसर इज डायलॉग्स डालते हैं. एंड द फोर्थ आंसर इज वर्ड लिमिट. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल.
I love the fact कि आप लोग आंसर कर रहे हो. I genuinely love it. Thank you so much for interacting in class. As long as you guys interact in class, because our classes will always be very interactive, by the way. अभी ज़्यादा बच्चे हैं class में, but our batches are also exclusive. So if we reach a certain number, we divide them into 2 batches so that we can stay connected to every single kid. Like अभी भी class में there are 2 to 3 teacher assistants as well. So I'll tell you a little bit about class, how classes work as well. पर ऐसा होता है यार मेरा बेटा कि what we want is कि I want to know all of you personally. Like अल्लाह की कसम when I started the class ना मुझे इतना weird लग रहा है. I can remember the kids from the previous session. I can remember Mueed. I can remember Shahir, Sumayya. And I'm like, they're not here anymore. And there's so many others. तो मुझे I miss them. You know, if I don't know who you are, how will I know what you lack in? Right? And that's what I love. I love the fact I love kids who are interactive in class. इसलिए मुझे लगता है कि online education is also good for a lot of you because even if you're a little introverted, screen के पीछे बैठ के तो कोई भी कुछ भी लिख देता है यार. So in that way, I can know you and I would love to get to know all of you. We'll learn about each other inshallah वैसे भी in the sessions. But you know that's how it works. अगर मुझे आपका पता होगा कि तुम नहीं क्लास में सवाल पूछोगे, let's say there's this kid, Shami right now. If I know कि you're not a very expressive kid, I would know कि यार मैं क्लास के बाद आपको मैसेज करवाऊँ कि बेटा कोई मसला तो नहीं हुआ था. Yeah, I can. Because I also check all the tests myself, by the way. Assignments, obviously the TAs check, but I check the tests myself. All the I'll tell you about it. अभी वो थोड़ा रुक जाते हैं, पर हम English पढ़ लें थोड़ी. I get थोड़ा सा मैंने डायरेक्शन लूज कर दिया. खैर, so let's answer these things. डिटेल का मेरा बेटा कोई फर्क नहीं होता. You have details in both. मैं आपको अभी I'll actually send it after class. I'll tell you, I'll show you a narrative ऐसे जो कि आप पढ़ के कहोगे कि इसमें इसने इतनी कोई लंबी की हुई है यार. And it's actually a narrative essay and it has scored full marks. वो मेरे ही बच्चे की script है, it's a script from their CI session. 25 to 25 marks. तो detail, that's not the difference. Senses, दोनों अल्लाह ही कसम, I'll show you to you, right? Senses, 5 senses, आप दोनों में डाल सकते हो. Not a difference. Dialogue, we are made to assume कि dialogue सिर्फ narrative में डलता है. I have examiner candidate responses, ECR जिसे कहते हैं, जो कि CI वाले खुद देते हैं आपको. सही ना? डायलॉग्स भी डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ चुके हैं एंड दे हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स. तो ईसीआर होती ही एग्जामिनर कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज, इस बच्चे ने हाई मार्क्स स्कोर किए. वर्ड लिमिट तो ऑब्वियसली दोनों की सेम होती है. आपके पेपर में जो भी सवालों में ऑप्शन आती है उनकी वर्ड लिमिट सेम होती है. इट्स 350 to 450 वर्ड्स. तो वर्ड लिमिट का भी कोई फर्क नहीं. तो क्या फर्क है भाई, क्या फर्क है? उसके लिए भी I'm going to tell you another story so that I can also tell you how interesting English is to learn. So bear with me for a second. I'm going to tell you 2 stories, मेरा बेटा. It's a very simple topic that we have on our hands. The topic that I'm talking about, then let's say कि मैं narrative ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है. अब मेरे पास 2 topics. एक topic है. The prompt is write a story about a trip that you took. A trip, a vacation, a holiday. कोई भी trip की story लिखे. सही है. आप लोग अपने hands down रखो. I will give you the chance to speak. I will be opening the chat in a minute, right? Alright. So basically, आपने ट्रिप के बारे में स्टोरी लिखनी है. अब मैं सोचती हूँ पहली स्टोरी आई सही कि यार मैं कोई बहुत अच्छी सी एक्सोटिक लोकेशन ले लेती हूँ. एंड व्हाट कम्स टू माय माइंड इज मालदीव्स, बिकॉज मालदीव्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स. It's one of the most famous tourist spots in the world. It's a beach location. ठीक है ना, very famous. तो मैंने स्टार्ट की स्टोरी यार कि in our story we go to Maldives में हम ट्रिप ले रहे हैं. We are staying at a beautiful resort. अब मैं स्टोरी बता रही हूँ कि हम लोग लंच करते हैं द बीच. जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं, लेट्स से मैं मेन कैरेक्टर हूँ एंड देयर आई हैव माय ब्रदर्स अलोंग साइड मी. तो हम लोग लंच करते हैं बीच पे, फिर हम लोग एक्टिविटीज करते हैं. बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप है. वी गो एंड वी गो फॉर स्कूबा डाइविंग और पैराग्लाइडिंग. एंड देन वी ड्राइव टू अनदर सिटी. और मैं बताती हूँ जो कैरेक्टर्स है स्टोरी में, फैमिली मेंबर्स. बहुत ही हैपनिंग स्टोरी है. पहले हम यहाँ रुके, हम लोग ने लंच किया, हम लोग अलग शहर चले गए, हमने एक्टिविटीज की. इट्स अ वेरी एडवेंचरस, इट्स अ वेरी हैपनिंग स्टोरी. सही है. लेट्स स्टोरी नंबर 1 फॉर यू. ये हो गई एक नैरेटिव ऐसे. अब मैं इसके ऑपोजिट एक सोचती हूँ. यहाँ मैंने बहुत अच्छी लोकेशन सोची थी, बहुत अच्छी एक्सोटिक लोकेशन. दूसरी साइड में मैं सोचती हूँ कि यार एवे ही कोई करीब की लोकेशन ले लेते हैं, टर्टल बीच. वाई टर्टल बीच? बिकॉज कराची के सबसे करीब यही बीच है एक. इट्स वेरी नॉर्मल. 1-1.5 घंटे की ड्राइव है.
सही है। मैंने बोला कि यार स्टोरी में, उस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे ना, फैमिली मेंबर द्वारा। इस स्टोरी में बस एक कैरेक्टर होगा, एक लड़की। लेट्स से मैं हूँ कैरेक्टर, आई एम द मेन कैरेक्टर। आई एम नॉट, बट लाइक एटलीस्ट यू गाइस आर। ठीक है। तो एक मेन कैरेक्टर है, एक लड़की। हमने बोला कि यार वो एक ट्रिप ले रही है विद फ्रेंड्स। इस पूरी स्टोरी में ना कोई लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, ये कहीं जा नहीं रही है, बस ये एक बीच पे जाती है। उसमें भी बिकॉज उसको पानी से डर लगता होता ना, इसको लेट्स से कि इस लड़की को पानी से डर लगता है, तो इसी चक्कर में एक रीजन भी तो देना है। ये कुछ करती ही नहीं है, ना ये कोई एक्टिविटी करती है, ये सिर्फ एक बार पानी में जाती है, टच करती है पानी को, और बस एकदम से रन्स आउट इंस्टेंटली। तो ये पूरी स्टोरी है। पहली स्टोरी क्या आती है, आप मालदीव जा रहे हो, ग्रेट लोकेशन, कैरेक्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे क्या है, एक लड़की है फट्टू सी, एक बार पानी में जाती है, वो भी बाहर आ जाती है जल्दी से। अब आप मुझे बताएं, फ्रॉम व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि यार विच आउट ऑफ द टू स्टोरीज डू यू थिंक, अगर आपने पेपर में लिखनी होती तो आप जाके कौन सी लिखते हैं, मालदीव वाली स्टोरी नंबर 1 और स्टोरी नंबर 2 लड़की वाली? जस्ट आंसर इन द चैट, वन और टू आंसर करो चैट में यार। विच वन वुड यू राइट? को सलाम करती हूँ, बट दैट्स नॉट एन ऑप्शन लिल ब्रो। ठीक है यार, I think almost a lot of you have answered one. सही है। ठीक है। सही है यार, एक सेकेंड, लेट मी पुट माय लैपटॉप ऑन चार्ज। एक मिनट, आप लोग आंसर कर लो सब तसल्ली से। मुझे 250 बच्चों के ही चाहिए आंसर चैट में यार। ये मुझे आ तो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सिर्फ 200 रिप्लाई कर रही है, 50 बाकी बीच में क्या कर रहे हैं। सबके आंसर होने चाहिए चैट में। देयर आर एक्चुअली लाइक 200 प्लस चैट्स, आई एम अज्यूमिंग कि सबने कर दिया आंसर। अब मैं आपको देख के बता ही सकती हूँ कि यार इन 200 में से आई थिंक एटलीस्ट 195 ने वन बोला है। चैट वन कर देते हैं इनसे। एंड लेट्स नाउ डिस्कस कि क्या कर दिया यार, इसमें नहीं लग सकता, क्या वो कुछ और लगा हुआ था ना वहाँ पे। हेलो 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 हेलो। सही है। ऑल राइट मेरा बेटा, सो बेसिकली या लेट्स से कि कौन सा नैरेटिव बेटर है। दिस इज समथिंग दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, बिकॉज दिस इज टू मी अ वेरी शॉकिंग थिंग एज वेल। ये मुझे पता ही नहीं था कि ऑलमोस्ट किसी बच्चे को ये बात पता ही नहीं होती है, बिकॉज आप सबने अग्री किया विद मी दैट एटलीस्ट वंस जिंदगी में आपने कभी ना सुना था ये नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव ऐसे, यू हैड हर्ड दोस वर्ड्स, लेकिन उसके बावजूद at this stage as well you were unable to differentiate कि कौन सा नैरेटिव बेटर और फर्क क्या होता है। now I'm going to tell you from the examiner perspective, अगर मैं जाके ये दोनों लिखती ना स्टोरीज पेपर में, पता है कौन सी वाली के ज्यादा बेटर मार्क्स आते हैं? 110% माइल्स बेटर मार्क्स आते हैं स्टोरी ए, सॉरी स्टोरी बी के। जो आप लोगों को बेकार बोरिंग स्टोरी लग रही थी, that one would have scored better marks. And do you know why that is? Because the one difference between the narrative and descriptive essays is the fact कि narrative essay के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी होती है, and that is having a conflict. Conflict से मेरा क्या मतलब है? What do I mean by that? Conflict just means अड्डा,
It just means a problem, anything that's wrong. इस स्टोरी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इट वाज जस्ट वन गुड थिंग आफ्टर अनदर। मैं रिजॉर्ट पे रही, मैं लंच किया, ये किया, वो किया, गुड 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 गुड। इस स्टोरी में हाउएवर एक कॉन्फ्लिक्ट था कि लड़की को पानी से डर लगता था, इसी वजह से वो एक बार पानी में गई। आई नो टू यू दैट चॉइस साउंडेड डम और स्टूपिड, but I'm telling you from the examiner's perspective, and I can say this with this much surety because कसम से I went on to this Cambridge training, और मैंने जो हमारा examiner है ना, Rod Smith, that's the main examiner who gives us all of our trainings, सारी इंग्लिश की trainings वही कराते हैं, O levels A levels सबकी ना। I genuinely narrated these two stories to him, मैंने उसे सुनाई ये, और मैंने कहा pick one, and then he said I'd pick story number two because it had a problem. And I just, the entire purpose of this exercise was to tell you guys कि यार there is so much that we don't know. हम लोग इंग्लिश बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ के आ रहे होते हैं। आई कैन शो यू अदर थिंग्स एज वेल। हमारी कल भी क्लास होगी, आज की क्लास इज नॉट अबाउट लर्निंग अ लॉट, इट्स मोस्टली अबाउट द सिस्टम एंड एवरीथिंग। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी लर्निंग समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आई टेल यू, आई गिव यू अ टीजर इन द एंड ऑफ द क्लास, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। इतने साल पढ़ने के बाद भी हम लोग इतनी सी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। हाउ कैन इट पॉसिबली बी योर फॉल्ट व्हेन यू हैव नेवर बीन टॉट दैट? माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता ना। इट्स अ स्किल, यू हैव टू लर्न इट, एंड यू कैन only learn it if you're taught it in the right way. So that's basically what I wanted to prove here, कि अगर आपसे जिंदगी में कभी कोई दोबारा पूछे तो ये कोई फर्क नहीं होता यार, फर्क होता है प्रॉब्लम का। नैरेटिव ऐसे, मैंने बहुत गंदगी कर दी पेज पे। नैरेटिव ऐसे के अंदर, नैरेटिव ऐसे के अंदर यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो नो प्रॉब्लम, हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये स्टोरी ए हमारी डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाती, एंड स्टोरी बी नैरेटिव ऐसे कहलाती। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता आपकी स्टोरी में तो आपके ऑलमोस्ट 5-10 मार्क्स तो ऐसे ही लूज हो जाते हैं। ये हमारी जनरल बात हो गई यार, दैट्स अ लिटिल बिट। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस सिलेबस। सही है, we'll be talking about all the three syllabi. We'll be talking about 1 1 2 3 O levels English language. We'll be talking about 0510 IGCSE second language, and we'll be talking about IGCSE first language. I want to clarify again and again कि ये सारे batches separately होते हैं. They're all separate. There's no mixing because that's too confusing. All the syllabuses are different. So this orientation class is the same because में बहुत सारी general बातें थी. So it didn't really make a lot of sense to do them separately. मैं बार बार अपनी क्या orientation में आके definition देती. पर खैर, let's talk a little bit about which one is easier first of all. तो मेरा बेटा generally syllabus wise अगर मैं बात करूंगी ना, तो if you're just talking about the content of it, if you're just talking about the, I can also, this is also so that you guys can have the right guidance, क्योंकि मुझे पता है a lot of you don't have it. O levels is 1 1 2 3, and then IGCSE के अंदर ना दो पेपर्स होते हैं. One is ESL. ESL means second language, कि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हो, ठीक है, आपकी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, आपकी मदर टंग नहीं है। एंड देन EFL इज योर स्पीकिंग इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज, कि आपकी मदर टंग ही इंग्लिश है। सो ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि दिस वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज आपको in this one you're giving the exam as if you are someone who is speaking English for their entirety of their lives. आप बचपन से इंग्लिश बोलते आ रहे हो, आपकी मदर टंग है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर पे डिफिकल्ट है, एंड दिस इज द इजीएस्ट अगर हम ईज की बात करें, ठीक है ना। हाउएवर ESL विच इज सेकंड लैंग्वेज, ये उसका सिलेबस कोड होते हैं, ये ज्यादातर स्कूल्स पाकिस्तान में ऑफर नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे बोर्ड में यूजुअली ये दोनों चल रही होती है, राइट। सो दैट्स द डिफरेंस। हाउएवर इजीएस्ट मैंने बता दिया, पर IGCSE जो सेकंड लैंग्वेज है उसका थ्रेशोल्ड इज लिटरली very high. Very high क्या मतलब? You need approximately 92% marks to get an A star. और O levels में कितने चाहिए होते हैं? 80% to get an A star. और EFL में almost 75% to get an A star, ऐसे होता है, ठीक है ना। मैं A star की बात इसलिए कर रही हूँ because that is what I want you guys to aim for, and it's very achievable by the way. It's very achievable. English is the subject to get an A star. I'm not even joking.
because we have so many of these every year कि मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ यार कि if you just follow my directions 100% आपका A या A+ आएगा, A star आएगा, genuinely, like I am not even joking about this. Maybe October November बैच में if your base is very weak तो थोड़ा सा आपको इशू हो, पर मई जून बैच में we'll be talking about that as well in the end. मई जून बैच में तो 100% अचीवेबल. अगर आपको लगता है आपकी बेस वीक है एंड इफ यू आर स्टार्टिंग स्टडीइंग फ्रॉम द स्टार्ट, अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़े किसी और से पढ़ रहे हो, आई एम नॉट जस्ट सेइंग मी, किसी और से पढ़ लो, जाके खुद पढ़ लो, अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो फॉर इंग्लिश you will 100% get an A or an A star, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. अक्टूबर नवंबर में you will have to put in a lot of effort because सिर्फ 3.5 months है. ये ईज की बात हो गई है, सही है. सिलेबस में क्या फर्क होता है मेरा बेटा, अब पहले पेज पे चले आते हैं यार. अगर मैं तुम्हें आके बोलूं कि यू हैव लाइक अ यंग कजन, उसको इंग्लिश सिखानी है या आपको चेक करना है, इफ आई वांट टू चेक whether someone is a good English speaker or not, तो मैं कैसे चेक करूंगी? There are only 3 ways in total. The first is कि आप सबसे पहले उसे कुछ पढ़वाओगे, बोलोगे यार रीड समथिंग, you'll give them a piece of paper and you'll be like यार पढ़ के दिखा. And then you'll second thing that you'll do is you'll make them write something. आप बोलोगे यार ये can you write something in English? And the third thing is you'll make them speak. Luckily for you guys, in O levels, which is the most commonly taken subject to syllabus code here, O levels में speaking का paper नहीं होता. However, IGCSE में especially English as a second language में speaking का paper होता है, but there's no need to worry about it क्योंकि speaking के paper का grade आपकी मेन ग्रेड में शामिल नहीं होता. इट्स नॉट accumulated. आपको स्पीकिंग का अलग ग्रेड मिलता है और बाकी रीडिंग राइटिंग का अलग ग्रेड मिलता है. तो टेक्निकली आपके सारे पेपर्स ना रीडिंग राइटिंग के अराउंड होते हैं. जैसे आपका ओ लेवल्स का सिलेबस अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लें तो ओ लेवल्स का मैं की आई एम टॉकिंग अबाउट इट फर्स्ट बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन वन. Like right now we have around like 100 registrations for O levels. तो O levels की सबसे ज्यादा होती है, then there's IGCS and everything, like enrolled students. तो O levels में there are 2 exams only. The first one as I mentioned is आपकी skills ही 2 है यार इंग्लिश में, एक रीडिंग है और एक राइटिंग है. तो सिमिलरली हाफ मार्क्स आपके 50 मार्क्स, टोटल पेपर होता है 100 मार्क का, उसमें से आधे मार्क 50 मार्क which is 50% of your grade is for reading and you have a 2-hour exam for that. उस 2 hours में you have 2 questions or you can call them 2 sections. The first section that you guys have is comprehension and the second section that you guys have is summary. अब मैं और दोनों सेक्शंस भी इक्वली डिवाइडेड हैं. बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर पेपर है ओ लेवल्स का. 100 मार्क का टोटल ग्रेड, 100 में से 50 मार्क का P1, इट्स वेरी सिंपल, एंड 50 मार्क का P2. ठीक है, दोनों पेपर्स के अंदर भी क्या होता है, इक्वली डिवाइडेड. सेक्शन A 25 मार्क, सेक्शन B 25 मार्क, एंड द सेम इज फॉर P2. सेक्शन A 25 मार्क, सेक्शन B 25 मार्क्स. So basically there are 4 sections or because 4 of them have the equal weightage, all of them weigh equally, right? सबका same percentage on your grade. तो आपको चारों को equal importance देके पढ़ना है. That's all you need to know right now. 2 papers हैं, 50 marks के हैं. That's how they're divided. Once again, paper 2 कितने का है? फिर से 2 hours का है. कितने मार्क का था? 50 मार्क का था. What percentage of your grade is that? 50% of your grade. फिर से क्वेश्चन 1 आधे मार्क का होगा, क्वेश्चन 2 आधे मार्क का होगा. दैट्स इट. और बिकॉज वी आर डूइंग दैट टुडे, आज से हमने क्या 2 वर्ड सीखे. वी लर्न द वर्ड क्रैन टुडे, वी लर्न द वर्ड ओरिएंट टुडे. अब मैं आपसे एक और वर्ड पूछती हूँ मेरा बेटा, ये वर्ड भी आप सबने मोस्टली ना तकरीबन जिंदगी भर सुना होगा क्योंकि ये सारे सिलेबस कोड्स का हिस्सा है. कॉम्प्रिहेंशन हर सिलेबस कोड में आता है. तो कोई मुझे बता सकता है कि एनी ऑफ यू आंसर इन चैट कि व्हाट डू यू थिंक द इंग्लिश वर्ड कॉम्प्रिहेंशन मींस. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? जस्ट इन वन वर्ड, व्हाट डू यू थिंक? आपने इतना करते हो कॉम्प्रिहेंशन, क्या मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन का? Good. Literally, it means to understand something. That's very nice. So comprehension comes from the word comprehend, and that means to understand something. ठीक है ना, मतलब पैसेज पढ़ना नहीं, अंडरस्टैंड करना, कुछ कॉम्प्रिहेंड करना. तो आपका पेपर, आपका अभी 3:30 तक फिर क्लास है, राइट? सो दैट्स हाउ योर एग्जाम गोज एंड दैट्स योर ओ लेवल्स एग्जाम. ठीक है ना, ये सारी आपको रिटन PDF विल बी अपलोडेड ऑन योर पोर्टल्स. ठीक है, सो दैट्स 50%. हाउएवर ये पूरा पेपर तो है
But one thing that's useful for every single syllabus code is grammar. Grammar में हम लोग को बहुत सी चीजें learn करनी होती है. There are 5 main things that you learn in grammar. The first one is that you learn is vocabulary. ये आपको real life में बहुत help करेगी. The second thing you learn is beta sentence structures, punctuations, and spellings. अब टाइम कम है हमारे पास एंड मैं इतनी लंबी नहीं करना चाह रही अच्छी क्लास में, तो लेट्स जस्ट गो विद द अदर सिलेबसेस इन लाइक अ सेकंड एंड हम लोग पे बात करेंगे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे कि हाउ डू आवर क्लासेस एक्चुअली वर्क एट इंग्लिश विद मिस जे. ठीक है ना. आईजीसीएसई का पेपर भी सिमिलर, बिल्कुल 50% 2 आवर्स 50% 2 आवर्स. दोनों पेपर 80 मार्क्स के होते हैं रादर देन 50. इसमें भी सिमिलर होता है, कॉम्प्रिहेंशन और समरी होती है, पर इस बार ये 3 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है. I have told you already this is the most difficult out of the 3, पर इतना मुश्किल भी नहीं है if you do this as well. इसलिए मेरा अक्टूबर नवंबर का कोई बैच नहीं है by the way. I don't have any अक्टूबर नवंबर बैचेस for 0500 क्योंकि मैं वो एक साथ नहीं पढ़ाती हूँ. I know a lot of teachers do that कि वो O levels और IGCSE के साथ पढ़ाते हैं, but that's not the right way. It's more difficult. बिल्कुल डिफरेंट है एक साथ पढ़ना बच्चे के साथ नाइंसाफी है. एंड आई डोंट थिंक अक्टूबर नवंबर में 3 मंथ्स में इस पेपर में स्टार लाया जा सकता है. दैट्स व्हाई आई डोंट टीच द अक्टूबर नवंबर बैच. आई कुड हैव टॉट इट, मैं लंबी जल्दी उड़ा देती सिलेबस, बट मुझे पता है कि स्टार लाना मुश्किल होगा एंड बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम फॉर. आई जस्ट नॉट सी एनी. इसलिए हमारा अक्टूबर नवंबर का कोई बैच नहीं है फॉर आईजीसीएसई. सिर्फ मई जून का बैच है. ठीक है. देन सेम यहाँ पे डायरेक्ट राइटिंग का पेपर होता है, सेम पेपर है बिल्कुल आईजीसीएसई ओ लेवल्स वाला है. इसमें भी 2 सवाल है, बस मार्क्स बढ़ गए. यहाँ पे 80 मार्क का पेपर है तो दोनों मार्क 40 मार्क ईच के हो जाते हैं. दैट्स इट. सही है. ओ लेवल से बहुत सिमिलर होता है ये भी, पर थोड़ा डिफरेंस है. जो चीजें सिमिलर होती हैं ग्रामर वगैरह, ग्रामर के टॉपिक्स देखो, इंग्लिश जो है ना मेनली वो तो सेम ही रहेगी. अगर मैं पंक्चुएशन पढ़ा रही हूँ, अगर मैं कॉमा लगाना सिखा रही हूँ आपको, दैट्स द सेम इन एवरी सिंगल पेपर. तो उसकी कोई क्लास कभी एक्स्ट्रा क्लास सेम हो सकती है, बट अदरवाइज द क्लासेस आर डिफरेंट. एंड दिस इज द लास्ट वन, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है. इसमें यू हैव 3 एग्जाम्स. द फर्स्ट एग्जाम इज रीडिंग एंड राइटिंग which is together, which is for 2 hours and of 60 marks. ये आपका 70% of your grade होता है. सही है. अगर आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन है फॉर सिलेबस, वी ऑल्सो हैव अ यूट्यूब वीडियो ऑन आवर चैनल फॉर द ओ लेवल सिलेबस, तो आप देख सकते हो दैट डील्स विद इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल. पर ऑब्वियसली इन आवर क्लासेस हम लोग सिलेबस दोबारा 1000 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा एक हफ्ते में. डोंट वरी अबाउट द सिलेबस. ESL इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज में क्या होता है, आपका रीडिंग एंड राइटिंग का एक पेपर होता है, दैट्स फॉर 2 आवर्स एंड दैट्स 70% ऑफ योर ग्रेड. सेकेंड पेपर होता है लिसनिंग का, दैट्स फॉर 50 मिनट्स एंड दैट्स 30% ऑफ योर ग्रेड. ठीक है. बाकी स्पीकिंग का पेपर मैंने आपको अभी बोला, इट्स सेपरेटली इंडोर्स, मतलब इट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स योर मेन ग्रेड. सही है. उसका मेन ग्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है. सही है. दैट्स द जनरल सिलेबस, यू कैन आल्सो रीड इट. और ये हमारे तीनों सिलेबस कंटेंट की बात खत्म होती है यहाँ पे. सही है. नाउ वी गोना टॉक अबाउट आवर सिस्टम अ लिटिल बिट. सही है ना, कि व्हाट्स डिफरेंट हियर, व्हाट डू वी डू डिफरेंटली एट इंग्लिश विद मिस जे. And in tomorrow's class, we'll be learning some more concepts. So now let's talk about what are some things that you'll be getting here. I'll just actually open the portal itself to show it to you guys directly, so that there are no confusions. All right. It's- I will give you guys time to ask questions, but in the end, please, the questions will be answered at like after 3:30. So, you know. So let's, I hope you guys can see the screen now. अब मैं आपको 2 चीजें दिखाना चाह रही हूँ that are very important. जैसे ना बेटा मैं आपको ये दिखाती हूँ सबसे पहले. Every single thing that you guys are going to be doing in class now is already planned. ये तो आपका मेरा प्लानर है and this isn't even half of it. मुझे already पता है कि मैं किस क्लास में आपको क्या पढ़ाऊंगी, किस क्लास बाद क्या होमवर्क होगा, किस क्लास बाद क्या असाइनमेंट होगा, एंड टेस्ट कब होंगे, वो टेस्ट चेक कब होंगे और असाइनमेंट चेक कब होंगे. वी हैव अ टीम of like a very big team working behind the scenes for every single thing. तो ना, तो I just want you guys to know कि you are in safe hands. ये पूरा पहली क्लास से लेके 20 तारीख की क्लास से लेके
आखिरी क्लास जो 4 अक्टूबर को होगी, बिकॉज ये पेपर्स ऑन द 5th ऑफ अक्टूबर, योर सेकंड एग्जाम ऑन द 5th ऑफ अक्टूबर। ये हर चीज यहाँ पे प्लान है, एंड ये सबसे जनरल वाला उसकी शीट्स का प्लान है। इसके अलावा वी हैव हैंड रिटन नोट्स। हर चीज ना मेरा बेटा टू द मिनट प्लान होती है, सो दैट यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज। मुझे पता है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू स्टडिंग हैज बिकम टू डिफिकल्ट, सही है ना। इसके लिए हम सेकंड बात कर लेते हैं, विच इज द पोर्टल। आप मेरी क्लास लेते हो, राइट, आप कोई भी क्लास लेते हो, आपने क्लास ली, बहुत मजा आया, मजाक मस्ती की टीचर से, मैंने बहुत आपको बकचोदी करा दी, आपको मजा आ गया। क्लास के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहा। अगर याद रहे भी, उस बच्चे को याद रह जाएगा जो रिवाइज करेगा, आई नो उसे याद रहेगा। पर मैं आपको बताऊँ ना, I was not the best student back in the day. I swear, I did not have my notebooks यार। मेरे पास पूरे साल 2 सब्जेक्ट्स की नोटबुक ही नहीं थी। I was kicked out of the class so many times। तो मुझे पता है कि how it is, and मुझे पता है how it is at the last month, जब मैं रो रही थी आंसुओं से, I was crying कि मैं करूंगी कैसे ये। I did manage to get good grades, लेकिन बहुत ख्वारी के बाद। तो what we want to do at English with Miss J is we want to keep every single thing at one place for you. That is what the LMS portal is. ठीक है ना? This is how it will look like. You'll get the access to it. It's englishwithmissj.com. You'll go here, you'll sign in. So right now I'm already signed in on the other website. अब मेरे पास ये view है, I should not be opening this वैसे तो Zoom पे, but चलो मेरे पास ये view है, right? These are all the enrolled students who are on the platform right now, right? तो अब मैं अगर इसको change कर दूं, I can view it as student. मेरे पास सारी चीजें आ रही हैं, student approvals, teacher approvals, blah blah blah. But now I go to view as student. Then I select my class. I select October, November 2026. And this is what you will see when you go onto the portal. Every single thing you need at one place. How does that work? Let's look at it now. यार आपके सामने ऐसे होगा हर क्लास के बाद, मेरा बेटा अभी कुछ भी नहीं, बिकॉज क्लास स्टार्ट नहीं हुई। आप यहाँ जाओगे, आपको हर क्लास के बाद उसकी डेट के साथ उसके नोट्स एंड उसके रिकॉर्डिंग्स दिखेंगी। नो 1000 ड्राइव फोल्डर जिसमें कुछ मिल नहीं रहा, क्लास रिकॉर्डिंग। इन केस यू एवर मिस अ क्लास, आपके सामने नोटिफिकेशन आएगी यार तुमने क्लास छोड़ दी है, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। I'll tell you about my classroom expectations as well. मेरी आपसे ज्यादा expectations नहीं है। मैं आपसे नहीं चाहती कि तुम मुझे रोज 400 पेज के 400 वर्ड के ऐसे लिख के दो। That's not how I teach. I'll tell you about it. Just 10 मिनट में हम यही बात करेंगे। That's not how I teach. I want to make learning accessible, especially for English language, because that's what I teach. I know English is not like other subjects. And I know कि you'll be drowning in the burden of your 5 other subjects, जहाँ पे तुम्हें करने पड़ेंगे 100 सवाल। तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर चीज को उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, राइट? हाउ वी डू इट इज बेसिकली माय सिस्टम इन इट इज वेरी सिंपल। I'll teach you stuff in class. As long as you pay attention in class, you'll be good to go. My notes are like workbooks. क्लास में जो आपकी आप वर्कबुक सॉल्व कर रहे होगे, उसमें एम्प्टी स्पेसेस होंगी, जैसे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है फॉर राइटिंग द मार्क्स ऑफ द एग्जाम, ऐसे ही आपके नोट्स में भी होगा। जो बात मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद लिखोगे। एंड आई नो व्हेन यू डू इट बाय योर हैंड्स, यू विल नो इट ऑलरेडी। आपको खुद आ जाएगा वो काम। एवरी सिंगल नोट्स दैट वी हैव, उसमें साथ एक्सरसाइजेज होती है। हम जो चीज पढ़ेंगे ना, मैंने आपको पढ़ाया डायरेक्टेड राइटिंग, मैं आपको हवा में नहीं पढ़ाऊंगी यार ये फॉर्मेट है, लिखना शुरू कर दो बेटा, ये ऐसे का टॉपिक है, लिखना शुरू कर दो। वही थोड़ी आ रही है तुम्हें, कैसे लिखना शुरू कर दो, कहाँ से लिखना शुरू कर दो। दैट्स व्हाट आई स्ट्रगल्ड विद द मोस्ट। क्लास में आके टॉपिक लिखा हुआ ऐसे का, मुझे नहीं आता ऐसे लिखना, नहीं पढ़ा मैंने, 10 साल जक मार के आया हूं मैं, क्या करूं अब, व्हाट डू आई डू नाउ। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, कि आई genuinely want to spoon feed it to you, because that is what education means, right? Why should I assume कि अगर आप O3 में हो तो आपको पता है कि कहाँ लगता है सेमीकोलन, तुम्हें नहीं पता, that's why you're here. It's very dumb for me to assume, and I stand by this, by the way. I'll never assume कि you know anything. I'll teach it to you. हाँ मैंने पढ़ा दिया 2 बार, सो अब तुम किसी दिन आके कहते हो मिस ये क्या होता है, तो मैं एक चमाट लाऊंगी आपको वर्चुअली और बोलूंगी रिकॉर्डिंग देख के आ, but otherwise you know I'll teach it to you. So let's just learn about that a little bit. Notes recordings are there. अब जो मैंने बात की थी होमवर्क की, how does that work? देखो अक्टूबर नवंबर बैच वाले बच्चों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी है, बिकॉज वी जस्ट हैव 3.5 months मेरा बेटा, तो माय हैंड्स आर टाइड। आप लोगों को आई विल नीड टू गिव अ बिट मोर होमवर्क,
सही है, बिकॉज टाइम नहीं है। बट जैसे मई जून बैच वाले जो बच्चे हैं उसमें इट्स वेरी इजी। मई जून बैच के लिए आई बिलीव इन समथिंग दैट आर वर्कशीट्स। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं बहुत लंबे लंबे आपको असाइनमेंट्स ना दूं, but instead I give you short interactive worksheets. This is my website, by the way. This is free. ठीक है ना, website is free for students. Portal is obviously not free. Portal is only for students enrolled in our academy and English with Miss J directly. ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ and then I go to quick worksheet. I'm just showing it to you that how it works. ऐसी मैंने कोई वर्कशीट की, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया यार, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया समरी का पार्ट भी, शॉर्ट रिस्पॉन्स। ये मैंने खुद बनाया, बाय द वे आई मेड दिस वेबसाइट एंड ऑल दीस वर्कशीट्स बाय माय सेल्फ। अब आप जाके ना यहाँ पे छोटी छोटी वर्कशीट है 5 मिनट की, आपने सवाल पढ़ा, वर्कशीट सॉल्व की। अब मैं रैंडमाइज सॉल्व कर रही हूँ अभी, देखो इसमें तुम्हें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बट यू विल रिवाइज योर एंटायर कॉन्सेप्ट। आप सॉल्व करोगे, ये ना मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया क्या आंसर, मैंने सिलेक्ट कर दिया आंसर्स and I submit assignment. And when it shows me my marks right there, it shows me how much I scored right there. I got 2 out of 10. That's the lowest I've ever gotten in my entire life. But you see how that works. And how it works on the website is कि यहाँ पे जाके ना अच्छी बात क्या है, वर्कशीट्स के बाद ना आपके लीडर बोर्ड्स भी होंगे। दिस इज जस्ट एन एडिशनल टच कि हम, बट आई वांट टू मेक इट फन फॉर यू गाइस यार। आप वर्कशीट जब करोगे ना तो यू विल हैव अ लीडर बोर्ड। तो आपकी जितनी भी वर्कशीट्स होंगी ना, बिकॉज यू विल हैव अ लॉट, 5-5 मिनट की होगी हर दिन की। जैसे मैंने आपको अभी ना वोकैबुलरी वर्ड पढ़ाए, मैं हर दिन आपको, हर दिन इन एवरी सिंगल क्लास 5 से 10 वोकैबुलरी वर्ड जरूर पढ़ाऊँ। एंड इन अ वेरी नॉर्मल वे, आपने अभी पढ़ा क्रैम, ओरिएंट, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रिहेंड, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कि आप एक्चुअली डेली बेसिस में यूज करोगे। वो सुपर कैली फ्रैली ब्ला 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 नहीं, नॉर्मल वर्ड्स दैट यू गाइस विल यूज ऑन अ डेली बेसिस। एंड देन क्या करोगे, क्लास के बाद जाके ना यहाँ पे आपके पास ना एक वर्कशीट शो अप हो रही होगी। तो एज सून एज यू ओपन द वर्कशीट, यू सॉल्व इट, आपका स्कोर आ जाएगा। तो हमारा ना फिर एक लीडर बोर्ड भी हुआ करेगा कि वे स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग द बेस्ट। एंड हर महीने के एंड में ना वील डू लाइक कैश प्राइजेस, कि टॉप 5 के लिए, टॉप 3 के लिए ना हम 5-5 हज़ार रुपये दे देंगे आप, सही है। लाइक आई लव दैट, आई डू दैट अलॉट। कैश वाला चीज बहुत होती है, मैंने तो सिस्टम बना दिया यार, वरना बहुत लंबी होती थी। अब सबके सामने ट्रांसपेरेंट लीडर बोर्ड होगा कि भाई ये वर्कशीट के मार्क्स आ रहे हैं, वर्कशीट्स करोगे आप लोग, दिस विल बी इंसेंटिव फॉर यू टू सॉल्व द वर्कशीट्स। करनी है यार, अजीब क्लास के बाद जाके सो जाते हो तुम लोग, पर खैर। So that's how it works. That's how you do your notes. That's how you do your worksheets. Assignments होंगे, that's your homework. Assignment का बहुत प्यारा सिस्टम है। आप जाओगे, असाइनमेंट आप अपलोड करोगे, सही है ना। We have people working around the clock. All of your assignments, by the way, will be checked. मैं कभी आपको हवा में नहीं बोलूंगी होमवर्क करो, होमवर्क कहाँ है, गायब हो गया होमवर्क, कभी मिला ही नहीं। भाई अगर तुम मुझे असाइनमेंट करके दे रहे हो and I'm not checking it and it's not getting back to you and you're not learning कि marks कटे कहाँ, तो उसका क्या फायदा। Like मैंने बहुत मैंने से ऐसे लिखा और मेरी टीचर ने तो पढ़ा ही नहीं। It's not helpful. So your assignments will be checked, inshallah, within like 48 hours. ठीक है ना। And test मैंने जैसे बोला था, assignments the team checks, tests I check myself, and that's why, because मुझे पता हो कि हर बच्चा कहाँ stand करे, because क्लास में तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना। अगर मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, तो क्या फायदा, right? So I check the test myself. I know it's a lot of it is a burden, I can tell you. But है। And then lastly, the last thing is reports. Report में मेरा बेटा आपकी हर चीज के मार्क्स होंगे। Your worksheet की एवरेज आप देख सकते हो, your assignments की एवरेज, your tests and your attendance. So this is very important. I know कि you guys can have other commitments यार, but attendance is very important. मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपके ग्रेड की गारंटी ले रही हूँ मई जून के लिए, अक्टूबर में के लिए भी, as long as you do my assignments. मेरे लिए तो और ज्यादा, अगर मतलब देखो बेस की बात है, आई कैन टेल यू दिस बाय द वे, कसम से। आई हैड अ स्टूडेंट लास्ट ईयर उसने पेपर के मार्क रिजल्ट आया था। पता है हाउ डिड दे यूज्ड टू राइट, दे यूज्ड टू राइट के यार, दे यूज्ड टू से, अपनी माँ को, अपनी अम्मी को बोलता था हर मदर, नॉट माय मदर, नॉट हिज मदर, ही सेड हर मदर। And वो नहीं पढ़ा था English, like he was not from an English medium board. He had a really bad base. He was like at like a U grade to say the least. And then he ended up getting a B grade. उसके लिए वो B grade ना बहुत अच्छा था. And I'm just telling you कि success stories are real. U से B आना is insane.
मैंने बोला यू से स्टार पे आ गया, नहीं आया यू से स्टार पे, पर यू से बी पे आना, ही वाज सो हैप्पी। एंड वी हैव सो मेनी स्टोरीज ऑफ पीपल गोइंग फ्रॉम डीज टू एज एंड ए स्टार्स, as long as you cooperate with me, the system is in place for you. आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी बाय वीकली, हर 2 हफ्ते बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी कि आपकी ये करंट स्टैंडिंग है। अटेंडेंस आपकी सारी रिकॉर्ड होगी पोर्टल पे। जैसे अभी जूम की क्लास लिया आपने, आई हैव योर ईमेल एंड अटेंडेंस, आई विल पुट दैट सीएसवी फाइल ऑन द पोर्टल, आपकी अटेंडेंस होगी वहां पे। पर यार मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, कॉल करवा दूंगी, क्लास तो तुम्हें ही लेनी है ना। In case you ever miss a class, please watch the recording before the next class, ठीक है ना, that's very important. सर, तो ये हमारा जनरल बातें हो गई हैं, that's how the system works. Let me change the screen again. All of this is obviously given to you guys as soon as you enroll. I'm sure all the enrolled students already have their accounts made as well on the portal, the 150 accounts. ठीक है, बाकी let me just, I know the class is gonna end. I'm gonna open the Q&A session now. बस मुझे आप 1 मिनट दे दो यार, I know कि आप लोग मेरा ज्ञान सुन के तंग आ गए हैं. Just give me 1 more minute, okay? And then I'm going to open the Q&A session for you guys. But that's what we are offering, right? So as I mentioned, the LMS portal access and the entire syllabus is covered online. All the recorded lectures are given to you. All the notes are given to you. Her class के notes in PDF form. If you want to get them in hard copy, that's up to you. But online students के लिए, I don't think that you need them. If you want to get them in hard copy, you can always get them in hard copy. We have candidate scripts. I've had like thousands of students appear in the past years. तो उन सबकी तो scripts नहीं है, because last year से scripts आना शुरू हुई हैं. तो तब last year की scripts हैं, but हर साल की scripts हैं. 23 out of 25 marks, 25 में से 25 marks. कम मार्क्स की भी स्क्रिप्ट है, इवन हैव स्क्रिप्ट फॉर लाइक 18 मार्क्स के, पता लगे कि वो 7 मार्क कटे कहाँ हैं भाई. We have topicals according to the new syllabus. As you guys know, the syllabus recently changed. So हमारे पास इतने ज्यादा भी yearlies नहीं थे. So we do have मेरा phone है. So we do have, what do you say, topicals which are booklets that I have made myself after all the Cambridge workshops कि यार आपके पेपर में जैसा सवाल आता है. So as I mentioned, personalized feedback on assignments, tests, reports, the leaderboard. So you know, आपके पास जो ग्रुप चैट होगी मेरा बेटा, दैट विल ऑलवेज बी एक्टिव. आई विल बी ओपनिंग इट फॉर द एनरोल्ड स्टूडेंट्स राइट नाउ. कि ग्रुप चैट में आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं if you want. You can also ask me. That's one thing that I did not show it to you right now on the portal. आपके पोर्टल में एक चीज आएगी that you'll see as Miss J's brain. उसके अंदर मेरा बेटा, that's something very different and unique. I know AI exists. I know AI is out there in the world. पर AI आपको CI सिलेबस के हिसाब से आंसर करके नहीं देता. अगर मैं तुम्हें कोई एक चीज पढ़ा रही हूँ एंड आई एम यूजिंग द टर्म फ्रैगमेंट, और दुनिया में एक वर्ड यूज होता है डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? अगर तुम रैंडमली पूछोगे जीपीटी से, यू विल बी कंफ्यूज्ड. सो ऑन आवर पोर्टल वी आल्सो हैव मिस जेज ब्रेन, जिसको मैंने बैठ के घंटों ट्रेन किया है, बिकॉज आई एम आल्सो अ सीएस मेजर. घंटों, 40-50 घंटे मैंने ट्रेन किया है. एंड इट हैज ऑल माय रिसोर्सेज, सो दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ना, अब मुझे पता है कि तुम रात के 4 बजे बैठ के असाइनमेंट कर रहे हो. अगर कर रहे हो तो आई ट्राई टू रिप्लाई, बट अगर मैं सो रही हूँ, अगर मैं तहज्जुद पे उठ गई तो ओके, बट अगर मैं सो रही हूँ तो आई कांट रिप्लाई एट दैट टाइम. लेकिन यू नीड द रिप्लाई एट दैट टाइम. आई नो कि तुम्हें रिप्लाई चाहिए उस वक्त. आई हैव बीन देयर. So that's what's gonna help you on the portal. छोटे मोटे सवाल तुम्हारे यहाँ के, what did Miss J say is the second paragraph. So तुम्हें to the point वो आंसर देगा उस सवाल का. लंबी नहीं करेगा, ये रिकॉर्डिंग देख के आओ. तुम्हें नहीं देखनी रिकॉर्डिंग, you don't have the time for that. That's how that works. ये अभी कंफर्म पूरा चला नहीं है, but it will be up and running within like a week. You'll have it within a week. मतलब it started, but अभी मैंने उसको लाइव नहीं किया आप लोगों के लिए. Start like कल कर दूंगी, ठीक है ना. So you have 24/7 live support. If you have any queries मेरा बेटा क्लास के बाद, जैसे मैंने बोला, this is the best your go to. लेकिन अगर तब भी तुम्हें कोई सवाल है तो ऑलवेज से क्या अपनी ग्रुप चैट पे पूछो, बिकॉज यार आपके साथ 10 और बच्चे होते हैं. क्या पता उन 10 में इतनी हिम्मत नहीं हो टू आस्क द सेम क्वेश्चन इन क्लास. मे बी इफ यू आस्क इट तो उनका भी फायदा हो जाए, राइट? सो we have assistants. You can also book remedial lessons. अगर कभी भी आपके ग्रेड्स 50% से नीचे ड्रॉप होंगे तो you will get a report and you will need to take some extra sessions with the TA कि आपके मार्क्स कटेगा. अब आपको जूम क्लास में बैठ के सिखाएगा कि बेटा तुम्हारे मार्क्स यहाँ कहाँ कटे. You can also ask me at any time. ठीक है ना. We'll also have extra classes for Q&A sessions. कभी कोई बात नहीं समझ आई किसी को, कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट एक्स्ट्रा हुआ है, एक्स्ट्रा बताना है, we have extra classes. So everything you need is in one place. क्लास में एक्सपेक्टेशन मेरी कोई भी नहीं है. Please just want to learn यार. Just have the just want.
ख्वाहिश पालाओ पढ़ने की, and you know just be there in class. That's all I want for you, from you. It's like मैं कोई वो distant dad जो होता है ना, वैसे बोली, just be there. But that's it. आज के लिए इतना ही है. That's all the ज्ञान from my side. I'm very excited for this exam session. Not just October, November, but also May, June. And it will be an amazing session, inshallah. I swear, like, I can't wait. I just came back from vacations, like, today, so I'm very tired. But I love teaching, yeah. I love teaching you guys. So now I'm gonna open the chat for questions. If you guys have anything, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल बी हियर फॉर लाइक द नेक्स्ट 25 मिनट्स. पर प्लीज स्पैम मत करना. अगर तुम लोग 50 मैच भेज दोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी 50, ठीक है? एंड एवरीवन वाली चैट में पूछें सो दैट आई कैन रीड इट. ओके, ऑलराइट, आई एम ओपनिंग इट नाउ. आई एम स्कैर्ड यार, तुम लोग बहुत स्पैम कर. ओके, ठीक है. बी माय गेस्ट. या, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी डायरेक्टली इन द क्लास, ठीक है यार? हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया. यू कैन लीव नाउ मेरा बेटा, यू कैन लीव. माय नोट्स सेम है नहीं, इस साल के डिफरेंट है मेरा बेटा. Portal is LMS. Yes, beta, everything. We'll learn punctuation. Every single thing हम पढ़ेंगे. This is, yeah, beta, obviously the sessions, the online sessions are paid. If you want, I will be teaching. मैं आपको बता देती हूँ यार. We have O levels, and which is 1, 1, 2, 3, and then we have IGCSE 0510 and 0511 for October, November. बस मैंने बता दिया. अब रिकॉर्डिंग देखना. मैं ये सोच रही थी, रेड ड्रेस वाली बात इज वियर्ड. पता नहीं मैं हर बार रेड ही कपड़े पहने क्यों होते हैं. ये सेम कपड़े नहीं है, स्वेर अलग अलग है यार. You can definitely get an Easter in October, November. You just need to give the time. If you are enrolled, you'll get access to the portal. ठीक है? आपको अगर enroll करना है तो please contact on this number. I'll actually open it right now. If you want to enroll, this is where you go. You can just directly, honestly, आप directly ये form fill कर दोगे ना तो आपकी enrollment हो जाएगी. Which is this form on this QR code. Please just fill this form and then you'll be enrolled. If you want to message someone, this is the number to go to. The team will help you. अच्छा, अगर आपने मुझसे डायरेक्टली कोई सवाल पूछ रहे हैं, द ग्रुप चैट, वी विल हैव अ सेपरेट ग्रुप चैट फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम एक्टिव अराउंड लाइक हर दिन ना घर जाने से लाइक घर जाते साथ ही गाड़ी में बैठ के ना ओपन द ग्रुप चैट एंड आई आंसर ऑल क्यूरीज दैट किड्स हैव. तो ग्रुप चैट इज द बेस्ट. ग्रुप चैट में आंसर करूंगी मैं आपकी क्यूरीज, बाकी टीम भी करेगी एंड एवरीवनस देयर. आप क्लास के बाद सवाल पूछ सकते हो, राइट? लाइक दैट. वोकैबुलरी, पंक्चुएशन सब मैं आपको पढ़ाऊंगी. मुझे पता है आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? जीरो से, लिटरली, लाइक दैट्स लिटरली इट. अगर आपको नहीं आती वोकैबुलरी, मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी. मुझे पता है कि मैं तुम्हें बोलूंगी जाके पढ़ लो थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स. घंटा तुमने पढ़ना है वो, नहीं पढ़ोगे तुम. I'll tell you things that you will do. I'll teach you vocabulary in class, यार. जी जब बेटा, I've read your message, but I don't understand कि इसमें question क्या है. This is the orientation class, यार. Yeah, it's gonna be from the very start, from zero. बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओ लेवल्स इज बेटर. इफ यू आर आस्किंग मी कौन सा सिलेबस कोड लो, ओ लेवल्स इज द बेस्ट. आई विल ऑलवेज रिकमेंड ओ लेवल्स. ऑनेस्टली तीनों अच्छे हैं. अगर आपने बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. तीनों बिल्कुल सेम है, वट एवर योर स्कूल ऑफरिंग. ओ लेवल अगर आपने बाकी पर आईजीसीएससी के तो आईजीसीएससी का दे दो. बुक रीडिंग हेल्प करती है वो कैपलरी में, बट वी ऑल्सो डू ऑनलाइन ओरिएंटेशंस का. दे विल टेल यू अबाउट इट. एंड कल की क्लास भी 2:30 PM पे होगी मेरा बेटा. I am not a Barca fan. I'm a Chelsea fan. I know you're gonna cancel me on this. So मैं क्या? I do help students individually, as you know, like as I mentioned, आपके assignments में. Please fill the form, यार. Please fill the form for the. मेरा बेटा, yeah, they will have separate classes. IGCSE and O-levels will have separate classes. Yes, beta, they will be there on the LMS. नहीं, दोबारा मत करें O-levels. I've uploaded the grammar video on YouTube already.
Yeah, if you want to buy the hard copy notes, you can still buy them वैसे भी. One Piece is too long. I've not seen One Piece यार. जी बेटा, you can just send a message on this number and then you'll be added, okay? या अभी वो बंद है. अभी आपकी chat बंद है, वो on हो जाएगी थोड़े से time में. There are 2 classes for the May June batch and 3 classes for the October November batch. चलो, हम recording बंद कर देते हैं.